Anyhow, I have to repeat it now. Okay. So I won't take much time. Okay. What are reviews? Reviews, walkthroughs, inspection. All these three are static testing techniques. What kind of technique? Static. Okay. These are static testing techniques. Okay. And these are used to identify defects in early stages of software development. Okay. And majorly these focus on document design and codes. ठीक है, without executing actual software. Execution मतलब running the software. Okay, got it. इतना सभी को समझ आ गया होगा. तो talking about reviews, reviews are formal or informal meetings where team member examines the software artifact. Artifact means basically the documents, requirements, code bases. Okay, so these are the things which are like discussed in the reviews. Okay, and what is the purpose of this is to find the early to find errors early and improve the quality of the software artifact. तो इसका मेजरली हमारा पर्पस यही होता है कि डॉक्यूमेंटेशन इज द फर्स्ट थिंग जो लिखी जाती है प्लानिंग के टाइम पे, और हम इसमें तभी उसी वक्त डिफेक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो जितनी जल्दी हमें डिफेक्ट मिल जाएगा उतनी जल्दी. ओके, तो दिस वुड बी बेटर कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें डिफेक्ट मिल जाएगा. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो की फीचर ऑफ दिस दैट this defi- this finds defect early in the early stages, and this can be formal or informal, and these discussions are generally flexible. Okay, for example, we already talked about the example: a peer reviews a piece of code where function calculates the discount for the customers, but somehow the reviewers notice that the function doesn't handle negative inputs. Okay, and reviewer gave the suggestion for adding it. Okay, सभी को इतना समझ आ गया? Yes, रिव्यूज के sir. बारे में समझ आया सभी को? एवरीवन गॉट अबाउट द रिव्यूज? Yes, sir. कैन आई गेट यस फ्रॉम एवरीवन? जिसने लेट ज्वाइन किया है प्लीज Yes, sir. 1-1.5 मिनट का जो भी हो गया है प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना. ठीक है, इफ वी कीप ऑन रिपीटिंग द थिंग्स तो टाइम डिले हो जाएगा, एंड वी हैव टू कंप्लीट 4 टॉपिक्स टुडे. ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि सभी को समझ आ गया है ना? तो कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? Yes, sir. Okay, cool. Before I move to the next slide, let me erase this here because this will be done by everyone during the recording. Okay. So I am hoping कि everyone has understood this. Okay. Yes, sir. Yes. Cool. Okay. Great. Let me put a line here. Okay. Cool. Don't have. We have it. Okay. I guess I can move to the next slide. Okay. Talking about the walkthroughs. Okay. See, walkthroughs are always done by the author who has written them. If it's a code base, who will be the author? If it will be a code base, if it is a code, who is the author? For a code, it's a developer. Okay, for requirement documents, RD, it's a business analyst. Okay, and for test cases, it's tester. Got it? Does everyone understood this? The walkthroughs are always done by the author. और walkthrough होता क्या है? Walkthrough is nothing but who, for example, a developer is explaining his code, okay, to everyone in the meeting. So it will be a walkthrough. A developer is walking through the code. Okay, if it's a requirement discussion, then a business analyst will be walking through the requirement document. Okay, and if it will be a test cases discussion, then a tester would be walking through all the test cases. It is mainly done by the author. Okay,
एंड ऑथर इज डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी आर्टिफैक्ट. ओके, गॉट इट? समझ आया सभी को इतना? got it. ओके. Yes, sir. Okay, so these can be semi formal. Okay, these are not completely formal, but these are semi formals. Okay, sometimes formal and sometimes informals. Okay, I hope everyone has understood this. These are semi formal where author of the artifact explain it step by step to the participant for the feedback. Okay, this is important for the feedback. All of these discussion happens for the feedback. Okay, Yes, sir. and what's the purpose of this is to clarify the content and gather suggestions or opinion. Okay, so for example, अगर if someone is explaining the code, तो पर्पस क्या होता है? पर्पस यही होता है कि सभी को कोड समझ आ जाए. ठीक है, सभी को क्लैरिटी मिल जाए. और अगर बिजनेस एनालिस्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट समझा रहा है तो पर्पस यही होता है कि डेवलपर जो है, प्रोजेक्ट मैनेजर है या फिर टेस्टर है, सभी को रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो जाएं. ठीक है, तो इसमें इन्वॉल्व कौन कौन होता है? ऑथर, पीयर एंड स्टेक होल्डर्स. ओके, समझ आ गया सभी को? Yes, yes, sir. ओके, इज दैट क्लियर? Yes. Okay, great. Okay, and what about key characteristic? तो इसके key characteristic होते हैं. This is the main focus is learning and understanding. Okay, each one is explaining and you are understanding. So this is the main purpose. And this is not a strict process. This is a formal defect logging. Okay, this is very formal or semi formal. Okay, सभी को इतना समझ आया? अब for example, a business analyst walk through the requirement document with developers and testers, explaining how a login feature should work during the suggestion, and team suggest adding a forget password option. Everyone, सभी को एग्जांपल समझ आया कि एक बिजनेस एनालिस्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट को वॉक थ्रू करता है डेवलपर्स और टेस्टर के साथ और एक्सप्लेन करता है कि लॉगिन फीचर कैसे काम करेगा. ओके, एंड ड्यूरिंग द सजेशन तो टीम को लगता है कि इसमें एक फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी होना चाहिए, तो सारी टीम उसको सजेस्ट करती है. तो जो जो भी ऑथर होगा वो उसमें ऐड कर देगा फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन. ठीक है, सभी को समझ आ गया इतना? Yes, sir. कैन आई गेट अ यस फ्रॉम एवरीवन एंड सपोज दैट दिस Yes, इज sir. अंडरस्टूड बाय एवरीवन? Yes, sir. ओके, कैन वी मूव नेक्स्ट? Yes, sir. ओके ओके, कूल. सो इंस्पेक्शन जो होते हैं वो फॉर्मल्स होते हैं. ठीक है, और इंस्पेक्शन ना यार कोई भी कर सकता है. फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजर कर सकता है. ठीक है, कोड रिव्यूअर्स कर सकते हैं. ठीक है, एवरी टाइम जब हम कोड डिप्लॉय करते हैं ना तो कोड रिव्यूज होते हैं. ठीक है, वो क्यों होते हैं? टू चेक इफ द कोड इज फॉलोइंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस. इट इज डन बाय द हाई लेवल डेवलपर्स. ओके, गॉट इट? High level developers or the senior most developers. Okay, Yes, sir. सो ये जो होते हैं फॉर्मल होते हैं और स्ट्रिक्ट प्रोसेस होते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, जहां पर एक मॉडरेटर इज अ सीनियर मेंबर ऑफ द टीम. ठीक है, लीड्स द एग्जामिनेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट टू द फाइंड द डिफेक्ट्स. ठीक है, इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस यही होता है कि डिफेक्ट्स मिल जाएं और हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा सॉफ्टवेयर स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है. गेटिंग? मेन पर्पस यही होता है कि हम स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो इसमें. ठीक है, इसके की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? इसमें इन्वॉल्व कौन होता है? मॉडरेटर इज द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द टीम जो कोड रिव्यूज कर रहा है. ठीक है, और उसके ये हाईली फॉर्मल होते हैं. दिस इज अ की कैरेक्टरिस्टिक. प्री डिफाइंड एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया होता है इसमें कि क्या चीज़ मैच होनी चाहिए, वो सब सब कुछ रिटर्न रिटर्न में होता है इसमें. ठीक है, एंड दिस रिक्वायर प्रिपरेशन. ठीक है, रिव्यूइंग आर्टिफैक्ट बिफोर हैंड. ठीक है, और डिफेक्ट्स आर लॉग्ड अप फॉर फॉलो अप. इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ हमने रिव्यूज या वॉक थ्रूज की तरह कुछ फॉर्मली या सेमी फॉर्मली डिस्कस कर दिया, वो अगर चेंज हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है. इसमें ये डिफेक्ट लॉग होगा और प्रॉपरली रिक्वायरमेंट्स में ऐड ऑन होगा जो भी रिव्यूअर बोलेगा. ठीक है, तो दिस इज फॉर्मल एंड स्ट्रिक्ट प्रोसेस. सभी को समझ आ गया इतना? अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं. इन अ कोड इंस्पेक्शन द मॉडरेटर इंश्योर दैट ऑल रिव्यूअर्स चेक फॉर कंप्लायंस विद द कोडिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि कोडिंग स्टैंडर्ड्स मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और कहीं पर किसी को मिला कि किसी कोड में एक कमेंट मिसिंग है एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए. ठीक है, तो उसे ऑर्डर किया जाता है डेवलपर को कि इसे कमेंट्स को ऐड करे. ठीक है, अब ये समझ आ गया सभी को इंस्पेक्शंस क्या होते हैं.
हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस कि इंस्पेक्शंस क्या होते हैं? Yes, sir. कैन आई गेट अ येस फ्रॉम एवरीवन? Yes, sir. एवरीवन, कैन एवरीवन प्लीज Yes, टर्न yes. ऑन देयर माइक एंड स्पीक अ येस? देखो कहीं भी किसी को भी कोई भी डाउट लग रहा है तो प्लीज़ आस्क अप। वैसे बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ है, देयर इज़ नथिंग प्रैक्टिकल। कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं समझ आएगा, ठीक है? जहाँ प्रैक्टिकल होगा वहाँ तुम्हें पता है कि मैं खुद ही बहुत ज़ोर देता हूँ उस चीज़ पर। दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, बट समटाइम्स इंटरव्यूज़ में पूछ लिया जाता है, ठीक है? इट्स वेरी रेयर बट पूछा जा Yes, सकता sir. है। ओके, कूल, ठीक है। तो मूविंग फॉरवर्ड लेट्स हैव अ कंपैरिजन टेबल। अब फॉर्मेलिटी की बात करें तो रिव्यूज जो होते हैं इनफॉर्मल या सेमी फॉर्मल होते हैं। वॉक थ्रू सेमी फॉर्मल होते हैं, बट इंस्पेक्शन फॉर्मल होते हैं, ठीक है? अब इनका पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस होता है डिफेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना और इम्प्रूव करना, ठीक है? वॉक थ्रूज का पर्पस होता है फीडबैक गैदर करना, ठीक है? और इंस्पेक्शंस का पर्पस होता है सिस्टमैटिकली फाइंड करके लॉग करना डिफेक्ट्स को, ठीक है? लॉग करना मतलब रिपोर्ट करना, ठीक है? अब देखो, लेड बाय रिव्यूज में कोई स्पेसिफिक लीडर नहीं होता है। वॉक थ्रूज हमेशा ऑथर्स करते हैं और इंस्पेक्शंस आर लेड बाय मॉडरेटर, ओके? डिफेक्ट लॉगिंग रिव्यूज में ऑप्शनल होती है, वॉक थ्रूज में कोई डिफेक्ट लॉगिंग नहीं होती है, ठीक है? लॉगिंग इज ऑल्सो नोन एज रिपोर्टिंग, ओके? ओके, एंड इंस्पेक्शंस में डिफेक्ट लॉगिंग मैंडेटरी होती है, ठीक है? फोकस क्या होता है? क्वालिटी इंप्रूवमेंट, इसका फोकस होता है अंडरस्टैंडिंग और इसका फोकस होता है डिफेक्ट्स को ढूंढ के वो करना, एलिमिनेट करना, ठीक है? प्रिपरेशन इसमें ऑप्शनल होती है, इसके लिए मिनिमल प्रिपरेशन चाहिए होती है, ओके? एंड इसमें प्रिपरेशन मैंडेटरी होती है। सभी को इतना समझ आ गया? कैन आई सपोज कि सभी को कंपैरिजन समझ आ गया है? Yes, sir. ओके, कूल। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज द इंटरव्यू फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन, ठीक है? ये इंटरव्यू क्वेश्चन सभी के सभी पढ़ लेना, दिस इज अ बिट इम्पॉर्टेंट, ठीक है? Yes, sir. Okay, talking about the difference between quality control, quality assurance and quality engineering, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, दिस इज बिट इम्पॉर्टेंट। मैं जब अपनी लाइफ का पहला टेस्टिंग के लिए इंटरव्यू दे रहा था ना, दिस वाज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी इंजीनियरिंग, ठीक है? वी विल बी स्टडिंग दिस इन डिटेल, ओके? ये ज़्यादा छोटा तो नहीं है? डू आई नीड टू जूम इट और एवरीवन इज एबल टू वॉच दिस प्रॉपर्ली? No, sir. Zoom it. ओके, ओके, आई विल जूम इट, ठीक है? जस्ट अ सेकंड। ओके गाइस, ज़ूम तो नहीं हो पाएगा, बट लेट मी सी इफ इट्स पॉसिबल। ओके गाइस, ज़ूम इज़न्ट पॉसिबल, बट you will be getting PDFs, ठीक है? और you are already having the PDF of this slide, okay? You can check the last notes and you can get it from there, okay? So I will be sending these notes again too, ठीक है? Talking about quality control, ठीक है? Quality control is the process of identifying the defects in the final product. This is core manual process, okay? Quality control is the manual process, okay? And when it happens after the development in the testing phase, okay? In testing phase, okay? And who are responsible? Testers are responsible for this process, okay? Testers are responsible. And what's the goal is to meet the requirement and ensure that the product is defect free, ठीक है? सभी को समझ आया? That the product is defect free, okay? सभी को समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. कुछ भी नहीं है, सिंपल थ्योरी है। आई गेस सभी को समझ आ गया होगा, ओके? कैन वी मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. Yes, sir. ये एग्जाम्पल और इंटरव्यू एंगल से इसे कैसे बोलना है ये पढ़ लेना, ठीक है? जब भी तुम्हें नोट्स मिल जाएं,
ओके, मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज क्वालिटी एश्योरेंस? ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है, क्वालिटी एश्योरेंस इज द प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक है, प्रोसेस ओरिएंटेड अप्रोच होती है। देखो, अब क्वालिटी कंट्रोल जो होता है ना, दैट्स नॉट प्रोसेस ओरिएंटेड, वो टेस्टिंग फेज में ही किया जाता है। बट दिस इज प्रोसेस ओरिएंटेड, और ये इंश्योर करता है कि डेवलपमेंट प्रोसेस ऐसा डिजाइन किया गया है कि उसमें डिफेक्ट्स को हम प्रिवेंट कर पाएं। ठीक है, इंश्योर दैट डेवलपमेंट प्रोसेस इज डिजाइन टू प्रिवेंट द डिफेक्ट्स। ठीक है, improving the process rather than the testing. Sorry guys, just a minute. Okay, ठीक है, it ensures improving the process rather than the final product. Quality assurance is the process of improving the process, not the final product. सभी को ये बात समझ आई? Yes, sir. ठीक है, अब ये कब होता है? दिस हैपन्स थ्रू आउट द डेवलपमेंट साइकिल। ठीक है, ये पूरी डेवलपमेंट साइकिल में चलता रहता है क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, हु आर रिस्पॉन्सिबल? क्वालिटी इंजीनियर्स और प्रोसेस मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल। क्यूए और प्रोसेस मैनेजर्स। गॉट इट? Yes. सभी को इतना समझ आ गया? अब इसका गोल क्या होता है? Yes, इसका sir. गोल होता है प्रोसेसेस, गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड क्वालिटी को मीट कर रहे हैं। ठीक है, टू इंश्योर दैट गाइडलाइन, प्रोसेसेस एंड स्टैंडर्ड्स इंश्योर द क्वालिटी। ठीक है, समझ आई ये चीज गाइस? सभी को समझ आ गया? Yes, sir. ठीक है, एग्जांपल के लिए क्यूए टीम इंट्रोड्यूसेस द कोडिंग स्टैंडर्ड फॉर द डेवलपर्स, सच एज राइटिंग यूनिट टेस्ट केसेस फॉर एवरी फंक्शन। ठीक है, दिस reduces chance of defects in the final product. ठीक है, गॉट इट? सभी को समझ आया इतना? Yes. कैन आई गेट अ यस फ्रॉम एवरीवन? क्या सभी को ये Yes, कंसेप्ट sir. समझ आ गया? थियोरेटिकल है, बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, तो आई होप कि सभी को ये भी समझ आ गया है। सभी को क्यूसी और क्यूए में डिफरेंस समझ आया? अभी डिफरेंस के बारे में ऑल्सो हम कंपैरिजन टेबल में और ज़्यादा अच्छे से बात करेंगे, बट कैन आई एक्सपेक्ट कि सभी को क्यूसी का कंसेप्ट और क्यूए का कंसेप्ट अच्छे से समझ आया? क्यूसी इज फॉर द फाइनल प्रोडक्ट एंड क्यूए इज थ्रू आउट द होल डेवलपमेंट साइकिल। ठीक है, सभी को समझ आ गया? Yes, sir. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, Yes, sir. टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी इंजीनियरिंग। ठीक है, देखो, क्वालिटी इंजीनियरिंग इज क्यूए प्लस ऑटोमेशन। ठीक है, क्वालिटी इंजीनियरिंग इज क्यूए प्लस ऑटोमेशन, बस इतना ही है। ठीक है, टेक्निकल प्रोसेस होता है क्योंकि दिस इंक्लूड्स ऑटोमेशन। ठीक है, दिस इट कंबाइंस द कंसेप्ट ऑफ क्यूए एंड ऑटोमेशन टू बिल्ड टूल, फ्रेमवर्क एंड प्रोसेसेस टू इंश्योर द कंटिन्यूस क्वालिटी। ठीक है, अब देखो, क्वालिटी इंजीनियरिंग में क्या होता है कि क्वालिटी इंजीनियरिंग में हम ऑटोमेशन को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, क्वालिटी इंजीनियरिंग के अंदर ऑटोमेशन में अगर हम ऑटोमेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऑटोमेशन में बहुत सारे प्रोसेसेस ऐसे होते हैं कि तुमने कोड्स राइट कर रखे हैं, स्क्रिप्ट्स राइट कर रखी हैं, जब भी तुम कुछ चेंज करोगे तो वो सारी स्क्रिप्ट्स अपने आप रन होंगी। जब भी तुम कोड में कुछ भी चेंज करोगे तो व्हेनेवर डेवलपर्स चेंजेस एनीथिंग इन द कोड तो वो सारी स्क्रिप्ट्स रन होंगी। ठीक है, और ऑटोमेटिकली जितना सब पहले वाला था वो सब कुछ ऑटोमेटिकली टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इज दिस वेरी दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कि सब कुछ ऑलरेडी टेस्ट हो गया है, अब हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट वन टाइम एफर्ट है स्क्रिप्ट लिखने वाला। ठीक है, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ऑटोमेशन इन द लेटर फेजेस, अभी के लिए हमारा गोल सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग है। ठीक है, तो ये कब होता है? थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। ठीक है, विद द फोकस ऑफ इंटीग्रेटिंग द क्वालिटी एट एवरी स्टेज, कि कुछ भी अगर चेंज हो रहा है तो क्वालिटी प्रोसेसेस इंटीग्रेटेड होने चाहिए उसके साथ। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? क्वालिटी इंजीनियरिंग, जिसकी प्रोग्रामिंग और ऑटोमेशन में स्किल्स होती हैं। ठीक है, अब इसका गोल क्या होता है? टू ऑटोमेट द प्रोसेसेस। ठीक है, अब ये एग्जांपल ना मैं ऑलरेडी टू गोल वाला ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल, a quality engineer builds an automated regression test suite which runs after the every code commit। every code commit मतलब होता है जब भी कोड में कुछ भी चेंजेस हुए। ठीक है, every code commit।
कोड चेंजेस, ठीक है। तो इश्यूज जल्दी मिलते हैं एंड इंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर रिमेन स्टेबल एज इट इवॉल्व्स, ठीक है। अभी इंटरव्यू एंगल से तुम पढ़ लेना। सभी को ये समझ आया कि क्वालिटी इंजीनियरिंग क्या होती है, क्यूई क्या होती है? कैन आई Yes. एक्सपेक्ट एवरीवन, कैन आई एक्सपेक्ट अ यस फ्रॉम एवरीवन? Yes, sir. ओके कूल। तो आगे चलें? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, जिसका भी माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लो। ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट द लेवल्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, देखो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के भी ना लेवल्स होते हैं, ठीक है। लेवल्स मतलब देखो, लेवल 1, लेवल 2। जैसे तुम एक गेम खेल रहे हो ना, तो उसके भी एक लेवल है ना। जैसे जैसे तुम उसमें नीचे जाते रहते हो, लेवल्स पे ऊपर बढ़ते रहते हो, लेवल 1 से लेवल 2 में जा रहे हो, लेवल 3 में जा रहे हो, ठीक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल Yes, 4, sir. ठीक है। Yes, तो sir. वैसे ही ना क्यूए में भी ना लेवल्स होते हैं, और सबसे पहले लेवल को हम कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। क्या कहते हैं? यूनिट टेस्टिंग। यूनिट से तुम्हें क्या समझ आता है? ठीक है, अभी चलो यूनिट टेस्टिंग के बारे में ना और डिटेल में पढ़ेंगे, बट यूनिट का मतलब समझ लो, यूनिट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। और यूनिट टेस्टिंग डेवलपर्स करते हैं, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग इजंट टेस्टर्स पार्ट, ठीक है। तो टेस्टिंग टेस्टिंग ईच एंड इंडिविजुअल फंक्शन, इंडिविजुअल कंपोनेंट, फंक्शन, क्लासेस, मॉड्यूल्स, ठीक है, टू इंश्योर कि हर एक चीज अच्छे से काम कर रही है। मतलब यूनिट मतलब सबसे स्मॉलेस्ट। अगर तुम हर चीज को अलग अलग कर दोगे तो वो अपने आप में सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो टेस्टिंग ईच कंपोनेंट इंडिविजुअली इज नॉन एज यूनिट टेस्टिंग। सभी को समझ आया यूनिट टेस्टिंग क्या होती है? Yes. Yes, sir. अब सपोज करो एक फंक्शन है, ये मैंने पहले ही बता दिया कि डेवलपर्स करते हैं। अब सपोज करो एक फंक्शन है, ठीक है, कैलकुलेट डिस्काउंट का, ठीक है। कैलकुलेट डिस्काउंट का एक फंक्शन है, हमें उस पर यूनिट टेस्टिंग करनी है। हमें नहीं करनी, वैसे डेवलपर ही करेंगे, ठीक है। बट तुम सपोज करो कि कैलकुलेट डिस्काउंट का एक फंक्शन है, अब हमें उस पर यूनिट टेस्टिंग करनी है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया यूनिट टेस्टिंग का, ठीक है। आगे चलें, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है कि जब इंटीग्रेशन टेस्टिंग नाम से ही समझ आ रहा है कि किसी चीज़ को इंटीग्रेट करना है, मतलब दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जोड़ना है। तो हम जब चेक करते हैं कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जुड़कर एक साथ सही काम कर रही हैं या नहीं, तो उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। मतलब टेस्टिंग द इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स। समझ आया? टू एंश्योर दे वर्क टुगेदर एज एक्सपेक्टेड। समझ आया सभी को? Yes, sir. ठीक है, इसका फोकस होता है डेटा फ्लो को वेरीफाई करना और इंटरेक्शन बिटवीन द मॉड्यूल्स। टेस्टर्स और डेवलपर्स दोनों करते हैं ये चीज़ें, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच होती है, इसमें दो तरह की अप्रोचेज होती हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। टॉप डाउन में क्या होता है कि हम जो हायर मॉड्यूल्स हैं, जो हमारे बड़े मॉड्यूल्स हैं, उनको छोटों के साथ कनेक्ट करते हैं धीरे धीरे और डाउनवर्ड्स जाते हैं, ठीक है। और बॉटम अप में क्या होता है, जो हमारे लो लेवल मॉड्यूल्स हैं, मतलब हमारे छोटे मॉड्यूल्स हैं, सपोज करो एक बटन है, एक बटन को दूसरे मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट किया हुआ है, तो वो ऐसे होता है कि छोटे मॉड्यूल्स को बड़े मॉड्यूल्स के साथ इंटीग्रेट करना, लो लेवल मॉड्यूल्स को हाई लेवल मॉड्यूल्स के साथ इंटीग्रेट करना, ठीक है। तो टॉप डाउन और बॉटम अप के लिए आपको सिर्फ अप्रोच पता, डेफिनेशन पता होनी चाहिए एंड नथिंग एल्स, ठीक है। एग्जांपल के लिए सपोज करो एक ई कॉमर्स ऐप है, उसमें ऐड टू कार्ट का बटन है, ठीक है। अब आपने तीन प्रोडक्ट्स ऐड टू कार्ट किए, प्रोडक्ट 1, P1, P2 एंड P3। अब जब आप चेकआउट करने जा रहे हो तो उसमें टोटल सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इसका प्राइस अलग है, इसका प्राइस अलग है, इसका प्राइस अलग है, इन तीनों का टोटल सही आ रहा है या नहीं आ रहा चेकआउट पेज पे। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग। समझ आया सभी को? Yes, sir. सभी को आ गया? सभी को एवरीवन, ठीक है। आगे चलें, Yes, sir. ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है कि पूरी एप्लीकेशन को एक साथ टेस्ट करना। सिस्टम टेस्टिंग इज आल्सो नोन एज एंड टू एंड टेस्टिंग, ओके।
एंड टू एंड या ई टू ई टेस्टिंग बोलते हैं इसके, ठीक है? एंड टू एंड टेस्टिंग, ठीक है? तो इसका डेफिनेशन क्या है? एंटायर एप्लीकेशन को एक साथ चेक करना कि इट्स मीटिंग द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है? इसका फोकस क्या होता है? ओवरऑल फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है? ये हमेशा टेस्टर्स परफॉर्म करते हैं। दिस इज कोर मैनुअल टेस्टिंग, ठीक है? ये भी मैनुअल में आता है, ठीक है? इसमें फंक्शनल टेस्टिंग आती है और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग आती है। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में हम 1 या 2 क्लासेस के बाद में बात करेंगे, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल टेस्टिंग एन कंप्लीट ई-कॉमर्स वेबसाइट वेयर यू विल बी इंश्योरिंग कि प्रोडक्ट ब्राउज़ हो रहे हैं, कार्ट में आइटम ऐड हो रहे हैं, पेमेंट्स बन रही हैं, ठीक है? और ऑर्डर रिसीव की कन्फर्मेशन जा रही है, ठीक है? सभी को समझ आ गया सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है? Yes. Yes, sir. सभी को समझ आ गया कंप्लीटली, ठीक है? Yes. ठीक है, तो आगे चलें? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? Yes, sir. ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। दिस इज आल्सो नोन एज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ओके? यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड यूएटी, ठीक है? दिस इज आल्सो नोन एज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड यूएटी। किसी ने आज से पहले यूएटी के बारे में सुना हुआ है? यूएटी या यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के बारे में? देखो, No. यूएटी टेस्टिंग या तो टेस्टर्स करते हैं या फिर क्लाइंट्स करते हैं या फिर एंड यूजर्स करते हैं, ठीक है? समझ आया? अब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के भी ना अलग-अलग पार्ट होते हैं। ये सिस्टम टेस्टिंग की तरह ही होती है, देयर इज़ नथिंग स्पेशल, बट हम इसमें ना यूज़र के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को चेक करते हैं, ठीक है? एंड यूज़र के पर्सपेक्टिव से या फिर जो हमारा कस्टमर है वो जैसा चीज़ों को चाहता है, हम उसके पर्सपेक्टिव से चेक करते हैं, ठीक है? अब देखो, इसमें क्या होता है, 3 टाइप की टेस्टिंग होती है। एक होती है यूएटी, ठीक है? ये तो एंड यूज़र्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है? एंड यूजर्स मतलब जिनके लिए प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है? नॉट क्लाइंट, क्लाइंट भी तो किसी को यूज करने के लिए बना रहा होगा ना, तो यूएटी वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है? यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। और इसके भी 2 टाइप और होते हैं, अल्फा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग देखो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है, जो इंटरनल टीम होती है ना, जो मतलब डेवलपमेंट टीम होती है, डेवलपमेंट और टेस्टर्स की टीम, उन्हीं की टीम में कुछ लोग ये टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियोज को सिमुलेट करके, ठीक है? तो वो होती है अल्फा अल्फा टेस्टिंग। और बीटा टेस्टिंग जो होती है वो रियल वर्ल्ड के यूजर्स करते हैं। बहुत बार आपने ऐप स्टोर पे देखा होगा ना, कुछ-कुछ एप्लीकेशन का बीटा वर्ज़न अवेलेबल होता है। तो दैट बीटा वर्ज़न इज़ एक्चुअली द बीटा टेस्टिंग गोइंग ऑन, ठीक है? समझ आई ये तीनों चीज़ें? सर प्लीज एक बार दोबारा एक्सप्लेन कीजिए। क्या एग्ज़ैक्टली क्या दोबारा एक्सप्लेन करूँ बताओ? ये तीनों टाइप्स दोबारा सर एक्सप्लेन यू करूँ? हाँ, टाइप दोबारा एक्सप्लेन कर। ठीक है, सुनो ध्यान से, दोबारा बताओ। हुँ, देखो, जो यूएटी होती है ना, वो एंड यूजर्स करते हैं, ठीक है? एंड यूजर्स मतलब इसका मतलब समझ लो क्लाइंट करता है, ठीक है? समझ आई ये चीज़? यस सर। अब जो डेवलपमेंट टीम है, वो अपने एंड पे भी एक फाइनल टेस्टिंग करती है बिफोर हैंडिंग ओवर इट टू क्लाइंट, ठीक है? उसे हम कहते हैं अल्फा टेस्टिंग, जो इंटरनल टीम के टेस्टर्स करते हैं, बट जो रियल वर्ल्ड के सिनेरियोज़ हैं, ठीक है? रियल वर्ल्ड के सिनेरियो समझते हो ना? जैसे एक एप्लीकेशन यस है, सर। ठीक है? तो अमेज़न ही है, जैसे अमेज़न पे एक अगर मैं रियल यूज़र होता तो मैं क्या-क्या चीज़ें करता, ठीक है? तो वो वैसे सब टेस्ट केसेस वहाँ पर सिम्युलेट करते हैं, उसे हम कहते हैं अल्फा टेस्टिंग, ठीक है? सो ये होती है इंटरनल टीम के थ्रू। समझ आई ये चीज़? अब देखो, यस सर। बहुत बार आपने ना प्ले स्टोर पे कुछ ऐप्स के आगे देखा होगा बीटा वर्ज़न लिखा हुआ, देखा है कभी?
अगर नहीं देखा ना तो मैं आज कोई ना कोई ऐप शेयर करूँगा, उसके नीचे देखना बीटा वर्ज़न लिखा होगा, ठीक है? तो वो जो होता है ना, वो हम ऐप लॉन्च कर देते हैं फाइनली, मतलब हमारा प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट फाइनली लॉन्च कर देते हैं, ठीक है? बट उसे हम स्टिल टेस्टिंग फेज़ में रखते हैं। उसे टेस्टिंग फेज़ में रखते हैं, बट जो एक्चुअल में जो रियल यूज़र्स हैं, रियल यूज़र्स, वो उसे टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? समझ आई? Yes, sir. बीटा टेस्टिंग समझ आया? Yes, sir. तो अब भी आगे चलें? Sure, sir. ठीक है, सभी को समझ आ गया? यूज़र एक्सेप्टेंस अल्फ़ा, बीटा और एक्सेप्टेंस। हुँ? Yes, sir. ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब कंपैरिज़न टेबल के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट टेस्टिंग जो होती है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे होती है, ठीक है? और इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो होती है, वो 2 या 2 से ज़्यादा मॉड्यूल्स पे होती है, ठीक है? सिस्टम टेस्टिंग जो होती है, वो एंटायर सिस्टम पे होती है और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो होती है, वो बिज़नेस रिक्वायरमेंट्स पे होती है, ठीक है? कि हमारा सॉफ्टवेयर जो रिक्वायरमेंट्स हमें मिली थी, उन्हें मैच कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, ठीक है? और कौन-कौन परफ़ॉर्म करता है? यूनिट टेस्टिंग डेवलपर्स करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग डेवलपर्स और टेस्टर्स दोनों करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग एंड टेस्टर्स करते हैं, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्लाइंट्स करते हैं, एंड यूज़र्स करते हैं और टेस्टर्स करते हैं, ठीक है? सभी को समझ आ गया? एग्ज़ाम्पल्स Yes, हम sir. ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? तो आगे चलें? Yes, sir. ठीक है, कूल। ठीक है, टॉकिंग अबाउट एक फर्दर एक और थोड़ी एनालॉजी से देखते हैं, ठीक है? एक और एग्ज़ाम्पल है लेवल्स ऑफ टेस्टिंग का, ठीक है? सपोज़ करो तुम एक कार बिल्ड कर रहे हो, तो सबसे पहले पता है तुम क्या क्या चेक करोगे? कि उसका इंजन अलग से चेक करोगे कि उसका इंजन अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा, उसकी ब्रेक्स अलग से चेक करोगे कि ब्रेक्स एक्सपेक्टेड काम कर रही हैं या नहीं कर रही, तो वो हो गई उसकी यूनिट टेस्टिंग। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या देखोगे कि तुम देखोगे कि चाबी घुमाते ही इंजन ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। समझ रहे हो? पावर शेल्फ देते ही इंजन ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा। ब्रेक्स लगाते ही गाड़ी रुक रही है या नहीं रुक रही। ये हो गई इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब सिस्टम टेस्टिंग में तुम क्या करोगे? अब सिस्टम टेस्टिंग में तुम पूरी कंप्लीट कार को चलाओगे। पूरी कंप्लीट कार को चलाकर देखोगे कि पूरी कंप्लीट कार चल रही है ढंग से, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ये हो गई सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है? अब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में तुम कार को कस्टमर को दे दोगे टेस्ट ड्राइव के लिए। ठीक है? और वेट करोगे कि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है? तो ये समझ आ गई? इससे इससे ज़्यादा अच्छा समझ आ गया होगा मुझे लगता है, इस एनालॉजी से। Yes, sir. ठीक है, Yes, आगे sir. चलें? आगे चलें? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आज का लास्ट टॉपिक है। अच्छा, आज का लास्ट टॉपिक तो नहीं है, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ ही लिया, ठीक है? इसे तो छोड़ ही दो। ये इंटरव्यू फ्रेंडली एग्जाम्पल है, ये पढ़ लेना, ठीक है? ये तुम्हें हर टॉपिक के बाद एक इंटरव्यू फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल मिलेगा, ठीक है? तो हर टॉपिक के बाद प्लीज़ इसे पढ़ लेना, ठीक है? अब ना यूनिट टेस्टिंग को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है? तुम्हें ये तो समझ आ ही गया कि यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, ठीक है? यूनिट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, ठीक है? तो यूनिट का मतलब समझ आया सभी को? Yes, sir. तो टेस्टिंग द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, स्मॉलेस्ट पार्ट कुछ भी हो सकता है। एक बटन है, वो भी अपने आप में एक स्मॉलेस्ट पार्ट है। एक फंक्शन है कोई भी, तो वो फंक्शन भी अपने आप में एक स्मॉलेस्ट पार्ट है। कोई क्लास लिखी हुई है, ठीक है? कोई ऑब्जेक्ट है, वो सब अपने आप में एक यूनिट है, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग, टेस्टिंग द स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है? अब देखो, यूनिट टेस्टिंग की डेफिनेशन हमने देख ली है। प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द स्मॉलेस्ट पार्ट, अ कोड, अ यूनिट in isolation to ensure that it performs as expected, ठीक है? अब यूनिट क्या होती है? यूनिट भी हमने पढ़ लिया। यूनिट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सच एज सिंगल फंक्शन और अ मेथड, ठीक है? अब यूनिट टेस्टिंग क्या करती है? यूनिट टेस्टिंग हेल्प कैचिंग द इश्यूज अर्ली, ठीक है? अब हम छोटे छोटे पार्ट्स, जैसे ही सपोज करो एक बटन है, बटन बन गया, अब हमने बटन को टेस्ट कर लिया, ठीक है? एक फंक्शन था, फंक्शन बन गया, हमने फंक्शन को टेस्ट कर लिया, ठीक है? तो ये बहुत अर्ली स्टेज का प्रोसेस है। और यूनिट टेस्टिंग कौन करता है? डेवलपर्स करते हैं, ठीक है? यहाँ तक सभी को समझ आ गया? Yes, sir. आगे चलूँ? Yes, sir. ठीक है, अब यूनिट टेस्टिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? ये क्वेश्चन ना पूछा जा सकता है इंटरव्यू में,
तो ध्यान से सुन लेना, अर्ली डिटेक्शन ऑफ बग्स ये हमने डिस्कस कर लिया। इस पॉइंट को मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत है? नो सर। ठीक है, तो इम्प्रूव कोल्ड कोड क्वालिटी, ठीक है। अब देखो, यूनिट के लिए ना, यूनिट कुछ भी हो सकता है, एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द कोड भी एक यूनिट है, एक फंक्शन भी एक यूनिट है। अब हम जब उनको भी टेस्ट कर रहे हैं ना, तो उनकी भी तो क्वालिटी इंप्रूव हो रही है ना। ये भी समझ आया, इम्प्रूव कोड क्वालिटी। यस ठीक है, फैसिलिटेट चेंज। अब तुम सोचो कि कुछ भी अगर ब्रेक हो गया, तो तुम उसे उसी टाइम चेंज कर लोगे, कितना बेटर है ना। तुम सोचो कि कुछ चीज़ पूरी बन रही है, हम फिर उसे टेस्ट करेंगे, बट तुम सोचो कोई चीज़ बनी, तुमने उसे तभी टेस्ट कर लिया, ठीक है, अब तभी उसके तुम्हें डिफेक्ट्स पता लग गए, ठीक है, तो और तभी के तभी तुमने उसे चेंज कर दिया, तो इट फैसिलिटेट चेंज, ठीक है, ये भी समझ आया। यस सर। सेव टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है, तो देखो प्रोडक्शन पे जाने से पहले ही हमें डिफेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, डिप्लॉय होने से पहले ही हमें चीज़ें पता लग रही हैं, तो टाइम और कॉस्ट हमारा दोनों बच रहा है, ये भी समझ आ गया? यस सर। सभी को समझ आ गया? कैन आई गेट अ येस फ्रॉम एवरीवन? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, चलो। तो ये परफॉर्म कौन करता है यूनिट टेस्टिंग? हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि डेवलपर परफॉर्म करता है, ठीक है, ये समझ आ गया। अब देखो, ऑटोमेशन टूल्स बहुत सारे होते हैं, जे यूनिट यूज़ होता है, एन यूनिट यूज़ होता है, पाई टेस्ट यूज़ होता है, ठीक है, ये सब टूल्स हैं, तुम्हारे किसी काम के नहीं है, डेवलपर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जे यूनिट इज़ समथिंग जो हमारे काम आएगा आगे जाके, ठीक है, आगे के फेजेस में, ठीक है, जो भी ऑटोमेशन हम पढ़ेंगे उसमें काम आएगा जे यूनिट, बट तभी हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे कि जे यूनिट कैसे यूज़ होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये इसका इनपुट है, जो कैलकुलेट डिस्काउंट की ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, दिस इज इनपुट फॉर दिस एंड दिस इज आउटपुट। ये इनपुट और आउटपुट समझ आया सभी को? ठीक है, अगर मैं कुछ भी इनपुट दूंगा, जैसे कि मैंने 10 प्राइस दिया और उस पे 5% डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो यहाँ मैंने 10 दे दिया, यहाँ मैंने 5 दे दिया, तो कुछ उसका इनपुट आएगा, वो इस फॉर्मूला के बेस, जो उसका आउटपुट आएगा वो इस फॉर्मूला के बेस पे आएगा। समझ आया सभी को? यस सर। ठीक है, सपोज करो कि तुमने प्राइस 100 दिया और डिस्काउंट दिया 10, ठीक है, तो रिजल्ट्स 90 आना चाहिए। चेक करें एक बार, ठीक है। सपोज करो कि तुम्हारा प्राइस था 10, ठीक है, सॉरी, तुम्हारा प्राइस था 100, ठीक है, और डिस्काउंट था 10, ठीक है, तो प्राइस इंटू डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइड बाय 100, ठीक है, और ये प्राइस में इसको माइनस भी करना है हमें, ठीक है। तो पहले हम इतना ही निकालते हैं कि ब्रैकेट का आंसर क्या आएगा। ब्रैकेट का आंसर आएगा 10, ठीक है, 10, और एक्चुअल प्राइस क्या था हमारा? 100, ठीक है, तो 100 माइनस 10, 90 आ गया। यही आउटपुट आना चाहिए, सही है? ये समझ यस आई ये सर। चीज़ सभी को? ठीक है, वैसे ही बाकी की केसेस भी हम टेस्ट कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है ना सभी को? यस सर। ठीक है, तो अब देखो, ये जैसे फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है अगर डिस्काउंट परसेंटेज 100 से ज़्यादा है तो उसको एक एरर रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। बट अब तुम देखो, यहाँ एरर, कुछ भी एरर तो हैंडल किया ही नहीं हुआ ना, इनपुट और आउटपुट ही दिया हुआ है सिर्फ, तो ये एक फोर्थ टेस्ट केस फेल हो जाएगा, ठीक है। क्यों फेल हो जाएगा? क्योंकि इसे हैंडल ही नहीं कर रखा है, ठीक है, समझ आई? देखो कहीं तुम्हें दिख रहा है कि अगर हमने डिस्काउंट परसेंटेज 100 से ज़्यादा डाल ली, इफ़ या एल्स दिख रहा है कहीं पर भी? नहीं दिख रहा, तो ये फेल हो जाएगा, फोर्थ टेस्ट केस हमारा जो भी होगा ना, वो फेल हो जाएगा, ठीक है। सभी को ये चीज़ समझ आई कि फोर्थ टेस्ट केस क्यों फेल हो यस जाएगा, सर। है ना? यस सर, इफ एल्स का यूज नहीं। इफ एल्स का यूज़ ही नहीं किया और हैंडल ही नहीं की है ना वो चीज़। इफ एल्स यूज़ करने के बाद उस हाँ। चीज़ को हमें हैंडल भी तो करना पड़ेगा ना, कि इफ डिस्काउंट परसेंटेज इज मोर देन 100, देन दिस शुड थ्रो एन एरर, ओके, ठीक है। तो यस सर। यूनिट टेस्टिंग का एग्जांपल समझ आया? ये यस सर। यूनिट टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स में आएगी या व्हाइट बॉक्स में आएगी, मुझे ये बताओ? व्हाइट बॉक्स में। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, व्हाइट बॉक्स में आएगी। व्हाइट बॉक्स में आएगी क्योंकि डेवलपर्स करते हैं, ठीक है। आगे चलें? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये एक्सप्लेनेशन ऑफ टेस्ट केसेस है, ईच टेस्ट इंश्योर, ये तो ठीक है। इफ एनी टेस्ट फेल, इट आइडेंटिफाइज एन फंक्शन लॉजिक,
इश्यू इन फंक्शन लॉजिक। तो कौन सा टेस्ट केस फेल हुआ था? फोर्थ वाला, ठीक है? ठीक है Yes, ना? sir. समझ आया? अब टेक्निक्स यूज़ इन यूनिट टेस्टिंग, कभी-कभार ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग भी यूज़ होती है, जिसमें हम सिर्फ इनपुट और आउटपुट पे, ठीक है? अगर तुम्हें ये फंक्शन, अगर मैं ये किसी टेस्टर को दे देता ना, टेस्टर क्या करता है, इसमें इनपुट डालता और आउटपुट देखता, है ना? वो और कुछ तो नहीं करता ना, है ना? No, sir. तो इस तरह से टेस्टर अगर इसे यूनिट टेस्टिंग कर रहा है, तो वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करेगा, ठीक है? बट अगर कोई डेवलपर कर रहा है, तो वो व्हाइट बॉक्स ही करेगा। बट ठीक है, मेजरली व्हाइट बॉक्स यूज़ होती है, ये बहुत रेयर होता है, दिस इज़ रेयर, ठीक है? दिस इज़ रेयर, ओके? Okay, sir. मेजरली व्हाइट बॉक्स यूज़ किया जाता है। समझ आया यहाँ तक सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो आगे चलते हैं। लिमिटेशंस क्या होती हैं? ठीक है, यूनिट टेस्टिंग से हम इंटीग्रेशन के इश्यूज़ नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि हम इसमें इंडिविजुअल मॉड्यूल टेस्ट कर रहे हैं। अब जैसे सपोज़ करो, एक आर्ट ऐड टू कार्ट का बटन है और एक कार्ट चेकआउट है। अब तुम्हें पता है कि जब तुम ऐड टू कार्ट दबाओगे, तो प्रोडक्ट्स को ऐड टू कार्ट में, उसमें चेकआउट कार्ट में जाना चाहिए। ठीक है, अब तुम बटन दबा रहे हो, बट जब तक वो इंटीग्रेटेड ही नहीं है, तुम्हें नहीं पता ना कि उसमें वो जाएगा या नहीं जाएगा, राइट? सही कह रहा हूँ? Yes, sir. ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज़्यादा। एक-एक हर चीज़, बहुत सारे, यार देखो, बहुत सारे कंपोनेंट्स हो जाते हैं। एक, अगर मैं एक स्क्रॉल की भी बात करूँ ना, एक स्क्रॉल भी एक कंपोनेंट है, एक बटन भी एक कंपोनेंट है, ठीक है? एक चेकबॉक्स भी एक कंपोनेंट है, एक कोड भी एक कंपोनेंट है, एक फंक्शन भी एक कंपोनेंट है। बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं यार एक सॉफ्टवेयर को बनाने में, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये। इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ओके? और टेस्ट कवरेज इसमें डिपेंड करती है यार, ज़रूरी नहीं है कि हम हर कंपोनेंट को ही टेस्ट कर लें। तो कुछ बग्स होंगे जो अननोटिस्ड चले जाएँगे इसमें, ठीक है? तो लिमिटेशन समझ आई सभी को? Yes, sir. सभी को कहना है गेट अ येस फ्रॉम एवरीवन। Yes, sir. अब देखो, ये हमारे Yes, sir. काम का नहीं है, ये डेवलपर्स के काम का है, तो इसे मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है? आगे चलते हैं, ठीक है? ये इंटरव्यू फ्रेंडली एक्सप्लेनेशन है, ये तुम अपने आप पढ़ ही लोगे, ठीक है? तो आज के जो भी 4 टॉपिक्स थे, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है? अब किसी को कोई भी डाउट है आज के टॉपिक्स में, नोट्स अभी थोड़ी देर में आ जाएँगे ग्रुप में, ठीक है? डज़ एनीवन हैज़ एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक जो आज कवर किया हमने? इज़ देयर एनीवन जो आज पहली बार क्लास अटेंड कर रहा है? ओके, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि सभी ने रिकॉर्डिंग्स भी देख ली होंगी, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास हम मंडे को करेंगे रात को 8 बजे, ठीक है? कोई भी डाउट्स नहीं है किसी के भी? सो कैन वी वाइंड अप दिस सेशन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके, ग्रेट। चलो, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।